Ravindra Pawar is a Mumbai-based artist, born in 1971. He is an art teacher, art therapist and psychosocial counselor who earned his GD Art Drawing Painting from LS Raheja School of Art, Mumbai and Art Teacher Diploma from Karandikar Kala Academy, Dombivli in Thane district. Living in Mumbai, being and experiencing the fast lifestyle, observing the overlapping visuals while commuting by local trains and buses of the people packed in the limited space and colors of the fabric they wear, and while going around the city, the slums, buildings, walls crumbling, rusted hoardings, scratches, walls cracks, drops of water and flow of liquid, trees, leaves, geometrical forms, shapes, roads, and many other elements forms visual frames of composition and embedded in my subconscious mind. These stimulate and inspire me to draw and paint. Also, my interaction with children, juveniles, and or otherwise, their emotions, psychological and social issues, et.al., are part of my subconscious memory which influences my work. My paintings are pure visual experiences that are to be seen by the viewer, says Ravindra. The fields of geometrical forms and colors transport one to the color field abstract expressionist movement. The play of color on the psyche of humans is as primitive as is man, and so is the therapeutic value of colors, which has a very deep impact on our minds and psychological well-being. Expressing through art that which cannot be spoken heals the deeper held aspects of our emotions and traumas, thereon healing the being. Ravindra's color palette is vivid, darks, earthy, muted, neutrals, and cool. The forms, lines, overlapping and revealing underlying colors, the powerful application of the medium, speak an unspoken narrative that has impacted him deeply and vividly. The use of complementary, analogous and monochromes to express his varying emotions and inspirations enhance the artwork, evoking the viewer's senses to indulge in the visual melody. Hello friends, myself Ravindra Pawar, Mumbai-based artist working in abstract for last 30 years. I am very thankful to Inabud and Inabud Art Ventures for giving me an opportunity as a brand ambassador for online art event interviewing। मेरे 30 साल की कला प्रवास के बारे में आपको कुछ बताना जरूरी समझता हूँ। 30 साल के प्रवास में स्कूल के दिनों में मुझे चित्रकला में बहुत सी रुचि थी और फिर रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट में मैं जीडी आर्ट के प्रशिक्षण लिया। अंतिम 2 वर्षों में मेरे काम में बदलाव आने लगा था, उसके कारण भी अनेक थे। मैं कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे पिताजी के लिए टिफिन लेके जाया करता था और उनका जो डिस्पेंसरी था जहाँ वो काम करते थे वो गिरगांव में था और एक गिरगांव में जाने के लिए बस से जाना आना करता था और इस दौरान बहुत सारे नज़ारे मैं बस से देखता था और उनके गिरगांव के नज़दीक जितने भी जगह हैं, नल बाजार है, चोर बाजार है, अगरीपाड़ा, नागपाड़ा, गोलदेव, ऐसी जगह पे ये सब बहुत सारे मेटल के दुकानें और व्यवसाय थे और ये व्यवसायों में ऐसे उनके हर एक दुकानों के बाहर हाथ गाड़ी लगाए गए और ये मेटल के जो वजनदार सामान थे, वो सिर्फ पाइप हो या कुछ और कुछ हो, ये सब लेके जाने के लिए वो हाथगड़ी से उपयोग किया करते थे और ये इतने थे कि वो मुझे समझ में नहीं आता था उस समय कि ये सब क्या चल रहा है। एक दिन क्या हुआ कि बस से मैं उतरा और एक बूढ़ा आदमी उसके ताकत से 4 गुना ज्यादा सामान ढोए हुए हाथ गड़ी से खींच रहा था और पीछे बाजू 2 तंदुरुस्त लड़के वो धकेल रहे थे। सामान इतना वजनदार था या बहुत लदा हुआ था कि वो बूढ़ा आदमी को खींचना बहुत मुश्किल था और वो उसके चेहरे पे, शरीर में जितने जो सब वेदनाओं के निशान या कुछ महसूस हो रहा था मुझे, ये सब मेरे मन में बसा। मैंने टिफिन लेके घर आया और उसके बारे में पूरा जो फीलिंग्स थी मैंने वो स्केच किया, पेन स्केच किया और वो पेन स्केच अभी भी मुझे तरोताज़ा करता है कि वो इमोशंस की तरफ लेके जाता। एक इंसिडेंट है, एक दिन मैं बस से उतरा तो एक हाथ टूटा हुआ आदमी
दोनों हाथ नहीं थे उसको, मैं पिछवाड़े वो से देख रहा था। नज़दीक जाने के बाद और उसके पास जाने के बाद महसूस हुआ कि बहुत दिनों से वो नहाया नहीं था और उसके गले में एक डब्बा बांधा हुआ था, गंदा, नहाया नहीं था, इसलिए बहुत बदबू आ रही थी। मैं वो भी मुझे अपील हो गया और वही मैं रेस्टलेस हो गया। टिफिन देके वापस बस पकड़ा और बस में बैठने के बाद स्केच करने की जो अर्ज थी वो उमड़ आई और मैंने टटोला किसी में से 2 टिकट निकली पुरानी और मैं स्केच किया उन टिकटों पे। घर आने के बाद वो मैं अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं था वो कामों से, तो मैं घर पे आने के बाद मैं स्केच पैड लिया और वो पेंसिल से स्केचिंग किया। तो उसके दोनों पोर्शन, बैक और फ्रंट पोर्शन, उसको मैंने देखा तब मैं पूरे स्केच उतारी और जो भाव और प्रकट आ गए उनके, उसके चेहरे की, उसके वेदनाओं की, दुख की, वो मैंने अच्छी तरह से मैं वो रेखाटन किया। अभी भी वो मेरे पास स्केच है और वो वही रिफ्रेश करता है कि इस इमोशंस को कैसे मैं पकड़ा जाए। मैं उस स्केच के बाद मैंने बहुत सारे कलर पेंटिंग्स की, कंपोजिशंस की, लेकिन जो इमोशंस वो पेंसिल स्केच में मिला वो पेंटिंग में नहीं मिला। और ये एक इससे पता चलता है कि इमोशंस और पेन जो है वो इनविजिबल है और उसको पकड़ना है तो फिर उसी मोमेंट में, उस क्षण में अपना जो काम करना चाहे एज ए कलाकार वो हमको करना पड़ता है, और नहीं के तो फिर वो इमेजिनरी विजन जो हमारी जो क्रिएट होती है वो निकल जाती है। एक और विषय के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ से गिरगांव से वर्ली आते समय मुझे वो जो बस था वो एक लेन से पास होता था और वो लेन था फॉकलैंड लेन, रेल लाइट एरिया था। वहाँ बहुत सारी महिलाएं अपने देह बिक्री के लिए वहाँ व्यवसाय करती थी और ये लेन से पास होते समय बस को बहुत ट्रैफिक मिलता था और 15-20 मिनट का समय वो लेन लेती थी और ये बस में से सब वो मैं नज़ारा से देखता था। और ये भी मैंने उसके बारे में मैंने उनके देह बोली, उनको क्या समस्या आती होगी और ये सब अन्य बहुत सारे सामाजिक विषयों के बारे में सोचकर मैंने उनके वेदनाओं के बारे में भी मैंने पेंटिंग की और ये मुझे कुछ अलग माहौल में लेके गई। सब ऐसे करते समय बहुत सारे अलग से काम होने लगे मुझे। और दूसरी बात है कि बम्बई में हम जब यहाँ से वहाँ जाना है तो ट्रेन से, लोकल ट्रेन से जाना जरूरी है, बस से जाना जरूरी है। बहुत सारी भीड़ होती थी और इस भीड़ में एक दूसरे के पास में से गुजरना भी मुश्किल है। इस भीड़ में भी हमें ये जो है टसल है, बॉडी का टसल है बस, तो ये मुझे बहुत फील होता था। उसमें भी बहुत सारे लोगों का जो एक के ऊपर एक, माने मुश्किल होता कि कोई एक के ऊपर गिर सकता है या झगड़ा हो सकता है, बहुत सारी ऐसी बातें वहाँ होती थी। बेगर्स आते थे। फिर एक ऐसा वक्त था कि मुझे जो भी कागज मिलता था मैं उस वक्त ट्रेन में बैठ के मैं उसके ऊपर स्केचेस करता था। और इससे जो स्लम्स एरिया है, स्लम्स एरिया में भी मैंने बहुत सारा समय गुजारा और उनके स्केचिंग के वक्त महसूस होता था कि ये स्लम्स कैसे बने हैं, वो कौन सी मटेरियल से बनी है, क्या है। और ये सब जो विजुअल इमेज मैंने देखा इन सालों में, वो सब धीरे धीरे बसने लगा और उसके ऊपर हम पेंटिंग करने लगे। मेरे चित्र और पेंटिंग को देखकर मेरे प्रोफेसर मिस्टर गावड़े और कदम सर, इन्होंने मुझे वेस्टर्न आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट का परिचय करवा दिया जो मेरे कामों से समांतर है। और उन्होंने इन आर्टिस्टों का बहुत नज़दीक से मुझे परिचय करवा दिया, उनकी चित्रों के बारे में मुझे समझाया। और उनमें से एक है केट कॉलविच, जर्मन लेडी आर्टिस्ट है। दूसरे हैं वैन गॉग, फिर गुर्नेका, जो मेलैंकली है या डेथ है या क्राई है या पेन है, इमोशन से जो इनके ऊपर उन्होंने ज़्यादा काम किया है। और यही मेरे चित्र में भी विषय सिमिलर थे, इसलिए मुझे वो भाए
और उनके ऊपर मैं अभ्यास भी किया। कालांतर में मैं थोड़े दिन के बाद मैं आर्ट प्लाजा में जाने लगा। आर्ट प्लाजा में मिस्टर शेनॉय जो गैलरी क्यूरेट करते थे और एक फाउंडर मेंबर थे, उनसे परिचय हो गया और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया वहाँ सैटरडे में काम करता था। और मेरा जो फिगरेटिव वर्क था वो मेरे वहाँ काम करते 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 सेमी हो गया और बाद में एब्स्ट्रैक्ट में परिवर्तित हो गया। जो मुझे जो एक आर्टिस्ट करे आर्टिस्ट एज अ आर्टिस्ट मुझे इमोशंस पर ज़्यादा काम करना मुझे पसंद था। तो मैंने काम करते करते मुझे भी महसूस होने लगा कि मुझे वो जो इमोशंस है काम करते करते वो ब्रशिंग में आ गए। वो ब्रशिंग मेरा इम्पोर्टेंट ऐसा टूल ये बन गया कि माध्यम बन गया कि मैं पेंटिंग में हर में ब्रशिंग का महत्व मुझे मेरा दिखने लगा। उसके बाद मैंने कॉलेज होने के बाद मैं एचडी किया और एचडी के बाद मैंने जो जॉब पकड़ा और जॉब एज अ ड्राइंग टीचर ऐसे संस्था में मुझे नियुक्ति मिली कि वहाँ सब जूनियर जैसे एक्ट के बच्चे आते थे। वो भी अलग अलग समस्याओं से ग्रस्त थे, कोई विधि संघर्ष ग्रस्त थे या कोई पेरेंट प्रोटेक्शन के बच्चे थे। ये सब बच्चे वहाँ उस माहौल में आते थे और अलग अलग उनकी समस्या होती थी, इमोशनल्स हो, वो कोई एडिक्ट हो, फिर उनके अलग अलग समस्या होती थी। और ये समस्याओं से मुझे ये सब मुझे कुछ मेरे पुराने कामों से लिंक होता था उससे। और ये मुझे वो स्कूल में होने के बाद फिर मैं जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म से फैमिलियर हुआ, वो बच्चों के साथ में काम करता था तो बच्चों के जैसे काम होने लगा मुझे। तो सिंप्लिसिटी या कुछ इजीली काम करने का जो परिवर्तन मेरे काम में आने लगा और जो इमोशंस एंड फॉर्म्स है, एलिमेंट्स है, ये सब उस वक्त परिवर्तित हो गई और एज एन एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट मुझे वो भाग गया और मैं अभी भी वही काम कर रहा हूँ। इस कला प्रवास में एज ए एब्स्ट्रैक्ट तो है, तो हमें महसूस होता है एज ए आर्टिस्ट। और वो जो पेपर पे कैनवास पे जो चित्र आते हैं वो पब्लिक को एब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन हमें वो एक लिविंग डे टू डे लाइफ में जो हम महसूस करते हैं वही आता है। तो इनर जो हमारा जो फीलिंग्स है वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और मैं वही में काम करता हूँ। और बहुत सारे पेंटिंग की शुरुआत मेरी जो है ब्रशिंग से शुरू होती है या कलर से शुरू होती है, लेकिन सब काम खत्म होने तक वो पूरे उसका बैलेंस और सब वो कलर ही या जो ब्रशिंग है वही करवाता है। पूरा चित्र ही बताता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ रुकना है। और ये सब जो चित्र बनाते समय जो माहौल होता है वो मुझे बहुत भाता है और बार बार नए चित्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इन 30 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आए, बहुत सारे बुरे दिनों से मैं गुजरा और इन 30 सालों में जो बुरे दिन गए उसके साथ में मैंने कभी भी मेरे चित्र ने मेरा साथ छोड़ा नहीं, मैं चित्र बनाते गया और ये मुझे मेरे जीवन का बैकबोन है कि मैं चित्र करता रहा और बनाता रहा। मैं नए और उभरते चित्रकारों को मैं यही सूचना देना चाहता हूँ कि कभी भी अपने जीवन से हार नहीं मानना है। जो हम तय करते हैं कि हमें आगे जाना है उस फील्ड में, तो चित्र बनाना, चित्रकार बनना, तो हमको वही करना है। तो कभी भी उससे कॉम्प्रोमाइज मत करो। अपने ध्येय और उद्देश्य को सफल करना है तो अब चित्र बनाते रहो और ये भी जो दिन है वो निकल जाते हैं और इसी से मैं सीखा हूँ कि मैं अभी कुछ अच्छा बन पाया हूँ। धन्यवाद।
है।